नमस्कार आप सभी को। क्लास 10th की जो सोशल साइंस की बुक है उसके लेसन नंबर 1 को हम इस सीरीज़ में कर रहे थे। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। अभी तक हमने इस लेसन में पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है मैं भी इसको कवर कर चुके थे। तो चलिए आगे इसको कवर अभी हम कंटिन्यू रखते हैं और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, but irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. But if we consume irrationally, without thinking, with very very high speeds, if we consume these resources with irrationally, that may be led to socio-economic and environmental problem. If we use these resources irrationally, then we will face many problems involving socio-economic problems and environmental problem also. To overcome these problems, resource conservations at various level is important. So what we can do? We have to do um, conserve our resources. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. For example, Gandhiji was very apt in voicing his concerns about resource conservation. जो हमारे पास्ट के लीडर थे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, he was also very concerned about the conservation of resources. He said there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. He said that the resources are enough to fulfill the requirement of every person, but not the greed. किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level, depletion at the global level. So उनका यही मानना था that the greed for more and more resources and selfish individuals that may lead to the main problem for the resources. He was against mass production and wanted to replace with the production by the masses. He is against the mass production of anything. वो नहीं चाहते थे कि मास प्रोडक्शन हो, बट वो चाहते थे कि प्रोडक्शन बाय द मासेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करें किसी भी रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज ही करें, बस प्रोड्यूस कोई भी ना करे रिसोर्सेज को। तो इसी मामले में एक इंटरनेशनल लेवल क्लब होता है, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक वे। तो ये क्लब था, इसने मोर सिस्टमेटिक वे में जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे दिया इन 1968. Subsequently in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by the sculptors in his book Small is Beautiful. तो एक फिलोसफर थे, उन्होंने जो है गांधी जी के फिलोसफी को एक बार फिर से अपनी बुक जो है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल उसमें जो है उसमें शामिल किया. The seminal contributions with respect to the resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. So another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. इसके बाद जो हुआ था एक अर्थ समिट जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो जो 1992 में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है 1992 में भी हुआ था
रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो उससे पहले की जो भी प्रोसेस, जो भी घटनाक्रम है वो इसमें बताई गई है। अब रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन अ डिफरेंट वे। थस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। सिंपल सी बात है, हम सबसे ज़्यादा लैंड का यूज़ करते हैं, हम लैंड पे रहते हैं, इसलिए जो लैंड रिसोर्स है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, इससे हमें नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, वेजिटेशन मिलती है लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, वाइल्ड लाइफ, human life, economic activities, transport and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. ये कह रहे हैं कि हम इस जो है एसेट है ये ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब ये लिमिटेड है। अर्थ जो है वो हमारे पास लिमिटेड है ना, जो मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज। जो प्लेन्स हैं आप उसको देखोगे वो हाफ भी नहीं है, वो हाफ से भी कम है। बाकी जो है माउंटेन्स हैं वो हम इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं, यूज़फुल तो है बट नॉट एज प्लेन्स। प्लेन के कंपैरिजन में दीज आर द लेस इंपॉर्टेंट एंड प्लेटूज ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए जो लैंड है वो दैट इज़ एसेट ऑफ लिमिटेशन, so we have to use it with very careful planning. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. About 43% of the land area is plain. मैंने कहा था कि लेस देन 50 है, तो 43% जो है वो एरिया प्लेन्स में आता है। विच प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, और उसी में जो है मेनली इंडस्ट्रीज हो सकती है और एग्रीकल्चर हो सकता है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। 30% हो जाता है हमारा माउंटेन्स। एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है द फ्लो ऑफ सम रिवर्स। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, टूरिज्म एक बहुत अच्छा वहाँ पे जरिया है लोगों के लिए। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो उनका है ही, क्योंकि लैंड वो फॉरेस्ट तो है ही, सिंपल सी बात है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज प्लेटू। वो क्या है? प्लेटू है, मेनली इन सेंट्रल इंडिया। इट पोजेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, और उसी के नीचे क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं एंड फॉरेस्ट होते हैं। लैंड का यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो बैरन है एंड जो वेस्ट लैंड है उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है, लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, उसका यूज़ कहाँ कहाँ से किया जाता है? परमानेंट पेस्चुरस एंड ग्रेजिंग लैंड, जब हम खेती नहीं कर सकते वहाँ पे हम ग्रेजिंग लैंड, जानवरों को चरने के लिए बना देते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रो नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, कहीं पे ये ट्रीज़ को जो है उनकी भी खेती की जाती है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जो मतलब छोड़ दी जाती है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स के उनको खाली छोड़ दिया जाता है। फेलो लैंड्स, करंट फेलो लैंड का मतलब होता है लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर्स। नेट सोन एरिया क्या होता है? मतलब इनके डेफिनेशंस दी गई हैं। नेट सोन एरिया क्या होता है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ अ लैंड ऑन विच क्रॉप आर शोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट शोन लैंड। तो नेट शोन लैंड क्या होता है? जहाँ पे रियल में कल्टिवेशन की जा सकती है। एरिया शोन मोर देन 1 in an agricultural year plus net sown area is known as gross scoped area। जो एरिया सोन किया, जो एरिया में बिजाई की गई है मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक साल में एक से ज़्यादा बार उसमें एग्रीकल्चर मतलब फसलें बोई जाती हैं, उनको कहा जाता है प्लस नेट शोन एरिया। उसमें जब यदि हम ऐड कर दें ऊपर वाला नेट शोन एरिया, उस दोनों के टोटल को कहा जाता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ने कुछ डेफिनेशन है, इनको दोबारा भी हम देख सकते हैं, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन,
जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होती, उसमें बैरन आ जाता है। और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए, मतलब बिल्डिंग्स और रोड के लिए यूज़ किया जा सकता है। अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड क्या होती है? एक तो परमानेंट पेस्चूर्स होते हैं, और ग्रेजिंग लैंड से छोड़ दिए जाते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स या ग्रोव्स, जो मतलब जो पेड़ों की ही खेती की जाती है, वहाँ पे ट्रीज की खेती की जाती है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब जिनको छोड़ दिया जाता है खाली। एक होता है फेलो लैंड, फेलो लैंड क्या होता है? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन, एक साल या एक साल कम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि फिर बाद में यूज़ उनको कर लिया जाता है। तो इस पार्ट में हम इस वीडियो में इतना ही करने वाले हैं, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए